Carbohydrates are the compounds of carbon, hydrogen, and oxygen. Usually, word carbohydrate means hydrates of carbon, i.e., a carbon associated with organ. जिस तरह carbohydrates can compounds हैं carbon, hydrogen और oxygen के. और word carbohydrate का literal meaning क्या है? Hydrate of carbon. I means a carbon associated with organ. According to this classic concept, carbohydrates are organic biomolecules or their derivatives in which all the carbon atoms are hydrated, having generalized formula CnH2n, where N is the number of carbon atoms and the number of water molecules. Classic concept के according, carbohydrates can organic biomolecules are derivatives in which carbon atoms are hydrated. और इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n. N का नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और वाटर मोलिक्यूल है. फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज हैज मोलिक्यूलर फॉर्मूला C6H2O6 or C6H12O6, but this formula is not exactly applicable for in some cases. For example, lactic acid C3H6O3 and acetic acid C2H4O2 are not a carbohydrate, whereas ribose C6H12O5 and deoxyribose C5H10O4 are carbohydrates. Hence, carbohydrates are now chemically defined as organic molecule compounds that are either polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Monosaccharides are their complex derivative compounds. Polysaccharides, which upon hydrolysis produce either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketones or both. So students, there are organic compounds हैं polyhydroxyaldehydes और polyhydroxyketones हैं और their complex compounds हैं which upon hydrolysis की जब इनको हम break करेंगे in presence of water produce either polyhydroxyaldehydes or ketones or both. Classification of carbohydrates. Carbohydrates are commonly known as sugars or saccharides. As most of the familiar carbohydrates are sweet in taste. Students, सारे carbohydrates को commonly हम sugars or saccharides भी कहते हैं because they are sweet in taste. Word saccharide is derived from Greek word saccharone, which means sugar. Classification of carbohydrates is based upon number of saccharide units. Carbohydrates are generally classified into three groups, i.e. monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. तो स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस के ऊपर है? सैकराइड यूनिट. ठीक है, तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड. ये आप देख सकते हैं फिगर 2.11 में केमिकल नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ये C6H12O6 क्या है? जनरल एक फॉर्मूला दिया है. अब ये ग्लूकोज का भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और फ्रुक्टोज का भी. अब ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन एल्डिहाइड है, जबकि फ्रुक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है. ठीक है, एल्डिहाइड क्या होता है? जिसमें सी डबल बॉन्ड हो यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ H प्रेजेंट हो, जबकि कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड हो के दोनों तरफ R ग्रुप यानी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है. ठीक है, सिर्फ अरेंजमेंट में फर्क है. और ये देखो, एक क्या है ग्लूकोज बन गया और एक फ्रुक्टोज, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 सेम है. नेक्स्ट हमें दिया हुआ है टेबल 2.2 कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमें ये भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स की थ्री टाइप्स हैं, क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, मोनोसैकराइड्स,
oligosaccharides and polysaccharides. अब इनका कंपैरिजन देखेंगे. Monosaccharides, they consist of single saccharide unit. Oligosaccharides, they are composed of 2 to 10 saccharide units. Polysaccharides, they are composed of more than 10 saccharide units. Next is, they are simplest carbohydrate, therefore cannot be further hydrolyzed. ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मोनोसेक्राइड्स, पहले ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. They have less complex structure, so upon hydrolysis yield at least 2 and maximum 10 monosaccharides. इनका लेस कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हाइड्रोलाइसिस पर ये मीन 2 एंड मैक्सिमम 10 मोनोसेक्राइड्स क्या कर सकते हैं, यील्ड कर सकते हैं. नेक्स्ट आर, दे हैव हाईली कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, सो अपॉन हाइड्रोलाइसिस दे यील्ड एट लीस्ट 11 मोनोसेक्राइड्स आर मोर. दे आर हाईली सोलेबल इन वाटर, ये क्या है, सोलेबल इन वाटर होते हैं. दे आर लेस सोलेबल इन वाटर, they are generally insoluble in water. Next is, they are sweetest among all carbohydrates, they are less sweet in taste, and they are tasteless. Next is, students, monosaccharides. Monosaccharides are carbohydrates which are either polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. The general formula for the representation of monosaccharide is CH2N, where n is number of carbon atoms in monosaccharides range from 3 to 7. All the carbon atoms in a monosaccharide except one have a hydroxyl group, while the remaining carbon atom is either the part of aldehyde or ketone. Next is, students, classification of monosaccharides. Classification of monosaccharides is based upon functional group and number of carbon atoms. On the basis of functional group, the monosaccharides containing aldehydes are called aldoses, while containing ketone are called ketoses. स्टूडेंट्स कह रहे हैं मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप भी एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम. ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वो मोनोसेक्राइड्स जिनके अंदर एल्डिहाइड होगा उनको हम क्या कहेंगे, एल्डोसिस, और जिनके अंदर कीटोन होगा उनको हम क्या कहेंगे, कीटोसिस. On the other hand, monosaccharides are classified into 5 groups based on number of carbon atom. जिनके अंदर 3 कार्बन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, ट्रायोसिस. जिनके अंदर 4 कार्बन होंगे, टेट्रोसिस. जिनके अंदर 5 कार्बन होंगे, पेंटोसिस. जिनके अंदर 6 कार्बन, हेक्सोसिस. और जिनके अंदर 7 कार्बन होंगे उनको क्या कहेंगे, हेप्टोसिस. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 2.3, एग्जाम्पल एंड फंक्शन ऑफ मोनोसेक्राइड्स. तो हमने क्लास पढ़ लिया, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस. ये 5 क्लासेस होती हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम. अब हमें एक फार्मूला दिया हुआ है C3H6O3. एल्डोसिस में एग्जांपल है ट्रायोसिस की ग्लिसरल्डिहाइड, और कीटोसिस में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. और इनका फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट है टेट्रोसिस, C4H8O4. इसकी एग्जांपल है एरिथ्रोस एंड एरिथ्रोलोस. फंक्शन क्या है, इंटरमीडिएट्स इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज पेंटोस, C5H10O5. एग्जांपल्स आर राइबोस, deoxyribose C5H10O4 and ribulose. Ribose and deoxyribose are components of RNA and DNA respectively. Ribulose is an intermediate in photosynthesis. Next is hexosis, C6H12O6. Examples are glucose, lactose and fructose. Glucose is respiratory fuel initial substrate. Fructose is an intermediate in respiration. Lactose is the component of milk sugar. Apoptosis, C7H14O7. Examples are glucoheptose, heptolose. Function intermediates in photosynthesis. नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड्स. Monosaccharides are simplest form of carbohydrates, so they cannot be hydrolyzed into simpler compounds. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मोनोसेक्राइड्स की, कि ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसलिए ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते. मोनोसेक्राइड्स आर हाईली सोलेबल इन वाटर, और ये हाईली सोलेबल इन वाटर में होते हैं, यानी इजीली डिजॉल्व कर सकते हैं वाटर में. मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स
may form hydrogen bond with the water molecule, so all the monosaccharides can easily dissolve in water. Monosaccharides are called sugars due to their sweet taste. Specifically arranged multiple hydroxyl groups in monosaccharides interact and activate the sweet taste receptors present on our tongue. Next is monosaccharides are called reducing sugars as they can reduce the other compounds and get themselves oxidized. Okay, इनको हम reducing sugars भी कहते हैं क्योंकि ये reduce कर सकती हैं other compounds को. Monosaccharides have a free aldehydic or ketonic group and oxygen atom of these functional groups may denote the electrons to the recipient compounds to reduce them. Monosaccharides show stereoisomerism due to different orientation of hydrogen and hydroxyl groups at the multiple asymmetric or chiral carbons in the structure. अच्छा, उसके अलावा जो मोनोसैक्राइड्स होते हैं आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स. Asymmetric carbon is that which is attached to four different groups. कह रहे हैं asymmetric carbon कौन सा होता है जो चार different groups के साथ attach हो. Next is monosaccharides with 5 or more carbon atoms may exist in two structural forms. For example, open chain or acyclic structure and a ring or cyclic structure. कह रहा है कि monosaccharides with 5 or more carbon atoms वो दो फॉर्म्स में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. कौन सा? ओपन चेन और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर में एंड रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैक्राइड. Monosaccharides are usually found in open chain structure in crystalline form, but when they are dissolved in water, most of them, pentoses and hexoses, are converted into ring chain structure. तरह जनरली क्रिस्टल फॉर्म में जो मोनोसैक्राइड्स हैं वो ओपन चेन में होते हैं, बट जब उनको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रिंग चेन में. टू टाइप्स ऑफ रिंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन मोनोसैक्राइड. फॉर एग्जांपल फ्यूरानोज एंड पायरानोज. Furanose is a five-cornered ring structure with one oxygen and four carbon atoms. कह रहे हैं फ्यूरानोस क्या एक 5 cornered ring structure है जिसमें एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन एटम्स होते हैं. इन फ्यूरानोस carbon and carbon 4 are attached to oxygen to form ring structure. All pentoses and ketohexoses form furanose ring structure. Next is pyranose. Pyranose is a 6-ringed cornered ring structure with one oxygen and 5 carbon atoms. In pyranose, carbon 1 and carbon 5 are attached to oxygen to form ring structure. All pentoses and ketohexoses form furanose ring structure. Only aldohexoses are converted into pyranose ring structure. Let us understand it by taking example of aldohexose glucose C6H12O6 and aldopentose ribose C5H10O5. Glucose and ribose can exist in open chain structures in dried form but exist in ring structure in aqueous medium. कह रहा है ग्लूकोज और राइबोस जो हैं ये ओपन चेन में होते हैं ड्राइड फॉर्म में, लेकिन ये रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ये इनको हम aqueous medium में डालेंगे. When they dissolve in water, the oxygen atom from aldehyde group react with second last oxygen, I carbon 5 in case of glucose and carbon 4 in case of ribose. In this way, oxygen atom forms a link between carbon 1 and 5 in case of glucose and between carbon 1 and carbon 4 in case of ribose, while OH group of second last carbon is shifted to carbon 1. After this modification, ring structure of glucose and glucopyranose whereas called glucopyranose while ring structure of ribose is called ribofuranose. ये देखें हमारे पास फिगर 2.13 में conversion of open chain glucose into ring chain glucopyranose and B ribose into ring chain ribofuranose. ये देखें ये ग्लूकोज था पहले, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसका, और जब इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया ये ए वाली फिगर में तो वो किस में ग्लूकोज रिंग वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया पायरानोस में. ठीक है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन और एक 6 कार्बन वाली रिंग बनी है. ठीक है, इसी तरह से जो राइबोस था ये तो इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ये फिगर बी में देखें.
और जब उसको हमने एक्वस मीडियम में डाला तो उस कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में लिंक बन गया और उससे हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर बन गया और ये हमारे पास बना है फ्यूरानोस, क्योंकि ये 5 कॉर्नर्ड जो हमारे पास रिंग बनी है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स डिस्कस करेंगे हम। Phenomena in which compounds have same molecular formula but they differ in structural arrangement or formula is called isomerism। कह रहे हैं फिनोमेना जिसमें क्या हो, कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन वो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में क्या डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर हेक्सोसिस with same molecular formula C6H12O6 but both have different structure of their functional groups। कह रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो हैं ये दोनों हेक्सोसिस हैं और दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर है functional groups का। Glucose is an aldo sugar and fructose is a keto sugar, so they are functional isomers of each other। कह रहा है जो ग्लूकोज है वो एल्डो शुगर है यानी एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज कीटो शुगर है यानी इसमें कीटोन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। तो कह रहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन ग्लूकोज। Stereoisomers are molecules that have same molecular formula but differ only in a relative arrangement of H and OH group in 3D space at the anomeric and asymmetric carbon atoms। अब स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट वो डिफर कर रहे हो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। ठीक है कि एक के कार्बन 2 पे फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पे है तो दूसरे के कार्बन 2 पे लेफ्ट साइड पे हो। ठीक है, इन 3D स्पेस एट एनोमेरिक एंड एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पे। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन कौन सा होता है, इज द कार्बन इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स that is derived from the carbonyl carbon of ketone or aldehyde functional group of their open chain। कह रहा है कि जो एनोमेरिक कार्बन है वो कौन सा कार्बन है, कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप का C डबल बॉन्ड O। जो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो है ईजी कार्बन 1 इन ग्लूकोज एंड राइबोस। और एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा होता है, इज दैट कार्बन विच मेक बॉन्ड्स विद 4 डिफरेंट एटम्स। फॉर एग्जांपल इन ग्लूकोज 4 कार्बन एटम्स कार्बन 2, 3, 4 and 5 आर एसिमेट्रिक। लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन एटम और सेकेंड लास्ट इन कार्बन चेन in case of glucose is called penultimate carbon। In monosaccharide, the number of stereoisomers actually depend upon the number of asymmetric carbon in structure and can be calculated by formula 2n, where n is the number of asymmetric carbon atoms. So glucose has 16 stereoisomers। Stereoisomers can be classified into following groups। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.14 में, कार्बोनाइल कार्बन रेड एंड एसिमेट्रिक कार्बन इन ब्लू इन ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर। ये ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ये आप देख सकते हैं इसमें 6 कार्बन होते हैं, सी कार्बन 1 कार्बन 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सी जो कार्बन नंबर 1 है जिसके जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है C डबल बॉन्ड O का कार्बन, ये क्या है, ये है, ये हमारे पास एनोमेरी कार्बन है, इसको हमने रेड में किया हुआ है। और ये जो कार्बन 2, 3, 4 and 5 हैं ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन है। ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर 2.15 में एनोमर्स अल्फा एंड बीटा स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब ये जो है ना स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज दिए में, ये देखें अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C6H12O6। अब इनमें डिफरेंस क्या है कि अल्फा ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस तरफ है, वो डाउनवर्ड प्रेजेंट है, जबकि बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप अपवर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये एनोमेरी कार्बन है। ठीक है, और जिस साइड में डाउनवर्ड प्रेजेंट है उसको हम अल्फा ग्लूकोज कहेंगे, और जिसमें ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 में OH ग्रुप अपवर्ड प्रेजेंट होगा उसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। तो ये क्या है, स्टीरियो आइसोमर्स हैं ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। उसके अलावा एग्जांपल ऑफ इनएंशियोमर्स दी हुई है फिगर 2.16 में,
ये देखें डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। अब इनमें डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ कार्बन नंबर 5 पे देखें अगर हम, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है डी ग्लूकोज में वो किस राइट साइड पे है, जबकि एल ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 5 पे लेफ्ट साइड पे है। तो ये क्या आ गए? ये इनेंशियोमर्स हैं, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। नेक्स्ट है हमारे पास एनोमर्स। एनोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स that have different position of H and OH group on carbon 1 anomeric carbon of pentose e.g. ribose and hexose e.g. glucose and are called alpha और beta isomers। ओके, ये स्टीरियोआइसोमर्स की टाइप है कि एनोमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स हैं जिनकी डिफरेंट पोजीशन ओ एच और ओ एच ग्रुप की ऑन कार्बन नंबर 1 पे। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें जो डिफरेंस है वो उनके एच और ओ एच की पोजीशन की बेस पे हो और कार्बन नंबर 1 पे डिफरेंट हो, तो हम ऐसे जो आइसोमर्स उनको हम क्या कहेंगे? एनोमर्स। इफ OH group is found downward, अगर downward हो on carbon 1 then it is called alpha sugar, and if OH is present upward on carbon 1 then it is called beta sugar। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास इनएंशियोमर्स क्या आते हैं? दोस स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स। इनएंशियोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ इनएंशियोमर्स इज डी डेक्स्ट्रो एंड एल लीवो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिगर 2.16 में हमने ऊपर देखा। D isomers are also called right-handed form, whereas in L isomers are also called left-handed form. In D glucose, penultimate carbon 5 has OH group on right side, whereas in L glucose, penultimate carbon has OH group on left side. Out of 16 stereoisomers of glucose, 8 are enantiomers of other 8। नेक्स्ट है हमारे पास diastereoisomers, those stereoisomers which have different position of H and OH group at more than one asymmetrical carbon atoms। ठीक है, ऐसे आइसोमर जिनकी ये OH और OH ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट हो एट मोर देन वन कार्बन एटम्स पे, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स पे, आर कॉल्ड diastereoisomers। Unlike an enantiomer, diastereoisomers are not mirror images of each other। For example, D-glucose and D-altrose are diastereoisomers of each other। Next is epimers, those stereoisomers which have different arrangement of H and OH at only one asymmetrical carbon atom। ऐसे आइसोमर्स जिनमें H और OH ग्रुप की अरेंजमेंट डिफरेंट हो एट ओनली वन एसिमेट्रिकल कार्बन पे, उनको हम क्या कहेंगे? एपिमर्स। फॉर एग्जांपल डी ग्लूकोज एंड डी मेनोज आर एपिमर्स ऑफ ईच अदर। ये आप देख सकते हैं फिगर 2.17 में 8 स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज encircled OH groups at penultimate carbon indicate the D isomers। ये देखें डी एलोज, डी एल्ट्रोज, डी ग्लूकोज, डी मेनोज, डी ग्लोज, डी आइडोज, डी ग्लैक्टोज एंड डी टेलोज लिया हुआ है। इन सब में जो कार्बन नंबर 5 है उसमें OH ग्रुप है जो हमारे पास, वो किस साइड पे प्रेजेंट है? राइट साइड पे। Carbohydrates, which are derivatives of monosaccharides and upon hydrolysis yield 2 to 10 saccharide units, are called oligosaccharides। कह रहे स्टूडेंट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइसिस पे यील्ड करें 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स, उनको हम क्या कहेंगे? ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट्स द ओलिगोसैकेराइड्स आर क्लासिफाइड इनटू डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। द मोस्ट कॉमन अमंग दीज आर डाइसैकेराइड्स। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।